Hello students, today I am present here in front of you discussing about the living world, the first lesson of class 11 standard. वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे इस लिविंग वर्ल्ड के बारे में. Whether you are living, you are seeing a lot of living organisms in your near surroundings. But the question is arises in front of us, how you have to differentiate between the livings and non-livings. क्योंकि my first point is here, what is living? All of you know very well, when you start your education in the beginning, so your teachers teach you to differentiate between the livings and non-living. She is saying livings can perform the process of movement and locomotion. They take nutrition. They show the property of growth, etc. etc. But the non-living organisms, they are not capable to do all these activities. So here I'll start the topic about this the living world, because this living world have a lot of variety in front of you. And you know very well, even the microbes group, the members of plant, animals, as well as the fungi, they all are belonging from the livings. So why we are saying these all are livings? जबकि हम सभी जानते हैं प्लांट्स अलग हैं, एनिमल्स अलग हैं. माइक्रोब ग्रुप में आने वाले बैक्टीरिया दे आर आल्सो डिफर फ्रॉम ईच अदर, बट सम पैरामीटर्स आर हियर व्हिच आर कॉमन इन ऑल ऑफ दीज, ड्यू टू व्हिच वी कैन से दीज आर लिविंग्स. सपोज दैट इफ आई एम डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू अबाउट द डाइवर्सिटी and I'm asking about you, what is diversity? So you say diversity means variation of different types of living. तो मैं ये कहूंगा how you can to say the variety of livings only. मैं यहाँ बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ शायद, इसलिए आप लोग कह रहे हो क्या कि डाइवर्सिटी केवल लिविंग्स को ही कह सकते हैं. डाइवर्सिटी तो किसी भी चीज की हो सकती है ना. If I have different types of pens, it means the diversity of pen. I have different types of claws, so it means the diversity of claws. It means diversity word is entirely different from the biodiversity. If I am saying about the biodiversity, it means here I am discussing about the diversity of the livings. And the livings are of the different types which was present in your near surroundings. Some livings you can see very easily, like a lot of animal and plants that you have in your near surroundings, mango tree, people, burger, banyan, as well as the animals, horse, monkey, fish, rabbit, etc. etc. But there are some livings which was present in your surrounding, you are not capable to see with the help of your naked eyes. We need the microscope for their proper vision, because they are very small and we people are not capable to see with the help of naked eyes. So now today in front of you, I am discussing about the livings and difference between the livings and non-livings. Lot of criteria I have taken to differentiate among them. Suppose that I have mentioned some point in front of you. The growth is the one of the parameter. Reproduction is the second parameter. Metabolism, cellular organization, consciousness, and other metabolic activity like the digestion, respiration, excretion, circulation, photosynthesis, guttation, transportation, ascent of sap, etc. etc. चलिए इन सबको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं. ये आखिरकार है क्या चीजें? क्या ये चीजें नॉन लिविंग्स में देखने को नहीं मिलती हैं? फिर से मेरा आंसर यही होगा, हो सकता है इनमें से कोई एक दो पैरामीटर्स आपको नॉन लिविंग में देखने को मिल जाए. जैसे रेगिस्तान में, इफ द हाई विंड वेलोसिटी इज देयर बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द सैंड, अगर बालू वहां पर एक जगह एकत्रित हो जाए तो टेलस जैसी संरचना बन जाती है छोटा सा, तो आप कहोगे हाउ दिस वाज फॉर्म, दिस इज बिकॉज ऑफ द विंड वेलोसिटी. तो क्या आप कहोगे वो लिविंग है? तो हमारा आंसर होगा नहीं. If I switch on the switch of the fan and fan start to move, तो क्या आप कहोगे वो मूव कर रहा है तो लिविंग है? मेरा आंसर फिर से होगा नहीं, वो नॉन लिविंग है. इनमें से बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो हो सकता है नॉन लिविंग्स में भी आपको देखने को मिल जाए, बट दे ऑल आर बिकॉज ऑफ द सम एक्सटर्नल force
external energy. But here I am discussing about these characteristic features in the case of living organism. ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑटोमेटिकली सेल्फ परफॉर्म करते हैं, नो नीड ऑफ एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई एक पैरामीटर्स यहां पर लिविंग्स में नहीं होगा। यू कैन सी ग्रोथ ऑल्सो, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे पैरामीटर्स आपको देखेंगे, कोई एक नहीं देखने को मिलेगा। तभी तो हम कहते हैं दीज आर लिविंग्स। चलिए शुरुआत करता हूं। डिफरेंस में सबसे पहले मैंने पैरामीटर्स यहां पर लिया जो, इसे हम कहते हैं ग्रोथ। इफ एनीबॉडी इज आस्किंग टू यू व्हाट इज ग्रोथ, सो हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन। एक छोटा सा बेबी जिसे आप देखते हो अपने सामने धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, एक छोटा सा बीज जिसको आपने मिट्टी में डाला था वो एक वृक्ष में बदल जाता है। इवन मैं आपको बता दूं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप देखते हो दो तरह के, सम आर द यूनिसेलुलर एंड सम आर द मल्टीसेलुलर। और आप सोचिए क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं शो करते हैं जबकि वो एक कोशिका के बने हैं? तो हमारा आंसर होगा डेफिनेटली वो भी करेंगे ग्रोथ, लेकिन कैसे करेंगे उसका डिस्कशन चलिए शुरुआत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट इज ग्रोथ, वृद्धि क्या है। ग्रोथ की एक सिंपल सी डेफिनेशन जो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, ग्रोथ एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें मास और वॉल्यूम दोनों कॉन्टिन्यूअसली बढ़ता ही जाएगा ओनली बिकॉज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन विद द टाइम। ये हर किसी में होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इवन आई एम ए ह्यूमन बीइंग्स एंड मल्टीसेलुलर एनिमल्स बिलोंगिंग फ्रॉम किंगडम एनिमलिया, बट आई हैव आल्सो स्टार्टेड माय लाइफ विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल सेल। मैंने भी अपने जीवन की शुरुआत एक ही कोशिका से की होगी और आज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के रूप में आपको दिख रहा हूं। इट मींस ग्रोथ का जो पैरामीटर्स है ये लिविंग का पैरामीटर्स है, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मैं चाहे करके भी बच्चा बनना चाहूंगा संभव नहीं है। हां, अगली जनरेशन को क्रिएट करना ये प्रॉपर्टी लिविंग्स में जरूर देखने को मिलेगी जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, जिसे आप रिप्रोडक्शन कहते हो। बट दोबारा मैं चाहूं वैसा फिर से हो जाऊं, दिस वॉज नॉट अ पॉसिबल। इसका मतलब ग्रोथ की जो प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है जो लगातार लिविंग ऑर्गेनिजम्स में चलता है बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? माइटोटिक सेल डिवीजन इज नेम ऑफ सेल डिवीजन, क्योंकि सेल डिवीजन अभी कई तरह के होते हैं। अभी आप पढ़ोगे, आपका चैप्टर क्लास 11th में है 10th सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जहां पर हम डिस्कस करेंगे वो सेल डिवीजन क्या है। लेकिन मैं यहां पर बता दूं माइटोटिक सेल डिवीजन ही जिम्मेदार होगा हमारी वृद्धि के लिए, ना कि मियोटिक डिवीजन, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन में 1 से 2 सेल बनती हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट रहते हैं और इस तरह उन 2 से 4 और फिर 4 से 8 एंड धीरे धीरे हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट जब बात आती है हाउ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रोथ, वो तो यूनिसेलुलर है। अगर उन्होंने सेल डिवीजन किया तो वो तो 1 से 2 सेल के हो जाएंगे ना, देन हाउ यू कैन टू से, तब आप कैसे कहोगे कि वो यूनिसेलुलर है? उनमें ग्रोथ का दूसरा कॉन्सेप्ट है। ग्रोथ का मतलब केवल ये नहीं है कि नंबर ऑफ सेल्स वाज इंक्रीजेस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इंक्रीज द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, उनके अंदर का जो साइटोप्लाज्म होगा उसकी मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि उनमें होने वाला जो सेल डिवीजन होता है जिसका नाम मैंने भी दिया था माइटोटिक सेल डिवीजन, वो एक प्रकार का रिप्रोडक्शन है। क्योंकि जैसे उन्होंने सेल डिवीजन किया इट मीन देयर प्रोजेनी वाज इंक्रीजेस, इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसका डिस्कशन आप 12th स्टैंडर्ड में करोगे जब डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ लिविंग वर्म्स। लेकिन मल्टीसेलुलर की जब बारी आती है तो फिर वही बात आती है कि कॉन्टिन्यूअस सेल डिवीजन विद द टाइम इंक्रीज द मास एंड वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन आप एक चीज ये भी देखते होंगे, क्या ये जो सेल डिवीजन का जो मैं नाम बार बार ले रहा हूं और ये बता रहा हूं वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, क्या ये बात बिल्कुल सही है? अगर ऐसा होता तो आप देखते हो एक इंसान 5 फुट 6 फुट 7 फुट का दिखेगा, उसके बाद तो आपको देखने को नहीं मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी ग्रोथ रुक गई? नहीं, ग्रोथ होगी, उसमें आगे भी होगी, लेकिन हर किसी में ग्रोथ का कॉन्सेप्ट एक सर्टेन टाइम पर अलग अलग होता है। जिसमें प्लांट्स की बात करूं, दे हैव अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द वन ऑफ द स्पेशल टिश्यू व्हिच हैव कैपेबिलिटी फॉर द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन ऑल ओवर टाइम। जैसे आप देखते ही होंगे, पतझड़ का मौसम आएगा,
and all leaves are fallen from the plant and tree. बट बसंत ऋतु में फिर से नई पत्तियां, नए सुंदर सुंदर फूल और कोपले दिखाई देती हैं. हाउ दिस वाज पॉसिबल? तो मेरा आंसर होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और वो ग्रोथ करते हैं, ऑल ओवर लाइफ करते हैं. लेकिन एनिमल किंगडम के जो मेंबर्स हैं उनमें जो ग्रोथ होगी एक सर्टेन टाइम तक ही होती है. एक छोटा सा बच्चा जो अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर देता है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द बर्थ, और उसकी ग्रोथ आप सुनते ही होंगे सोसाइटी में कहते हैं 18-20 साल बाद अब उसकी ग्रोथ नहीं होगी. क्या ऐसा संभव है? उसकी ग्रोथ बंद नहीं होती है, चलती ही रहती है. लेकिन हाँ, अब आप सोचो कि आपकी हाइट बढ़ेगी और आप और बड़े हो जाओगे. सो दिस वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक सर्टेन टाइम आने पर जो वहां पर ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाता है. क्या होगा बाद में? When we are attaining the age of maturity, definitely हमारी शरीर की जो कोशिकाएं हैं हर किसी का एक सर्टेन लाइफ स्पैन है. फिर से मैं बताऊंगा, सेल साइकिल जब सेल डिवीजन डिस्कस करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा some cells was taking some minutes for the process of cell division. क्यों? क्योंकि हर सेल का अपना एक लाइफ स्पैन है. सपोज आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ आरबीसी, द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेल ऑफ आवर बॉडी is responsible to bring the oxygen with the help of hemoglobin entire body is necessary for the survival of individual. But I have saying in front of you, लेकिन वो आरबीसी का भी एक लाइफ स्पैन है. Near about scientists are saying 120 days they have a life span. इसका मतलब क्या हुआ? 120 दिन बाद तो अगर वो खत्म हो जाएगा, so from where we produce the RBC? क्योंकि हमारे शरीर में आरबीसी का प्रोडक्शन भी हो रहा है. हाउ दिस वाज पॉसिबल? सेल डिवीजन द वन ऑफ द फैक्टर. हमारे शरीर में बोन मैरो पाई जाती है. वी हैव द लॉन्ग बोन्स लाइक द थाइस, जिसे आप फीमर कहते हो, ह्यूमरस, रेडियस अल्ला, दीज आर द बोन ऑफ द अपर आर्म्स एंड द लोअर वन. They have marrow cavity with the presence of bone marrow is the responsible for the production of new RBC. Not only RBC, the entire blood, WBC, have the blood platelets. मैं यहां पर इसका एग्जांपल इसलिए दे रहा था कि हर सेल का एक अपना लाइफ स्पैन होता है, और मैंने शुरुआत इसकी की थी कि क्या इंसान जीवन पर्यंत बढ़ता ही रहेगा? तो मैंने कहा था नहीं, मैच्योरिटी एज आने पर उसकी ग्रोथ स्टंटेड मींस स्टॉप या रुक जाती है. लेकिन वहां पर ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है चेंज हो जाता है. हर सेल का एक अपना लाइफ स्पैन है, उसकी जगह पर न्यू सेल ऑटोमेटिकली रिप्लेस होती रहती है. हमें इस बात का पता नहीं चलता है. क्या आप जानते हो आपकी स्किन है मोल्टिंग करती, मींस ओल्ड वन वाज रिप्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ न्यू वन, एंड दिस वाज ओनली पॉसिबल बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. सो हियर द फर्स्ट कॉन्सेप्ट आई हैव डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू, जिसे आप क्या कहते हो? ग्रोथ. हिंदी में हम वृद्धि कहते हैं. अच्छा, आपने एक चीज और पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चे स्पेशली फ्रॉम द हिंदी मीडियम जब वो पढ़ते हैं तो दो वर्ड आते हैं हिंदी में, वृद्धि और विकास. इंग्लिश में हम ग्रोथ और डेवलपमेंट कहते हैं. परहैप्स ऑल ऑफ यू थिंकिंग इन द माइंड बोथ आर द सेम. सेम नहीं है, बोथ आर डिफरेंट. दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं. अभी ग्रोथ को तो शायद मैंने अच्छे से आपके सामने डिस्कस किया है कि ग्रोथ एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है जो क्या चलेगी जीवन के साथ साथ कोशिका विभाजन की वजह से लगातार चलती रहती है. लेकिन इसमें सेल की संख्या बढ़ रही है. लेकिन डेवलपमेंट प्रोसेस अलग है. आप अपनी दादी से भी पूछिएगा, शायद वो आज भी कुछ सीख रही होंगी समाज में रह करके, जबकि उनकी ग्रोथ खत्म हो चुकी है. डेवलपमेंट प्रोसेस नहीं बंद हुई है, वो हमेशा सीखती रहती हैं. इट मीन्स हम पूरे जीवन में, हम जब तक जीवित रहेंगे, नॉट ओनली मी, आई एम डिस्कसिंग अबाउट द इंटायर वर्ल्ड, इंटायर लिविंग वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूं कि डेवलपमेंट तो जीवन भर चलता ही रहेगा. आज आप मुझसे लेसन 1 लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हो, और अगले आने वाले वीक में मैं आपको हो सकता है बुक का लास्ट लेसन भी डिस्कस कर रहा हूंगा, और तब तक आप समराइज कर चुके होंगे एक बुक को. इट मीन्स यू हैव अटेन्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज रिलेटेड विद योर स्टैंडर्ड. So it means growth and development both are differ with each other. Growth occur at a certain time, at a certain limit, but development is a process of the living organism which occurs all over time with the life of individual. So first concept perhaps this was clear in front of you. आप लोग जब NCERT से देखोगे तो बहुत सारी चीजें एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे.
दूसरा पैरामीटर्स मैं आपको यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं रिप्रोडक्शन। दो शब्दों से बना है, री प्लस प्रोडक्शन। व्हाट द मीनिंग ऑफ री एंड प्रोडक्शन? री मीन्स अगेन एंड प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन। Creation of living one, it means this is known as reproduction, and we know very well every living organisms have a capability. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्षमता है कि वो प्रोडक्शन करके क्या करता है, अपनी अगली पीढ़ी का, अपने वंश का निर्धारण करता है। किस लिए? फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ देयर रेस। हर कोई चाहता है हमारा वंश, हमारी प्रजाति की निरंतरता दुनिया में बनी रहे। बट हम ये बात भी जानते हैं, आपने देखा भी होगा, क्या हमारे समाज में पाया जाने वाला हर इंसान कैपेबल है फॉर द क्रिएशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन? लॉट ऑफ कपल्स आर इन अवर सोसाइटी हु आर नॉट कैपेबल टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट जनरेशन। तो क्या आप उनको नॉन लिविंग्स कह दोगे? हमारा आंसर होगा नहीं। कुछ सर्टेन रीजंस होंगे जिसकी वजह से वो शायद रिप्रोडक्शन ना कर पा रहा हो सकता है मेल्स में कोई कॉम्प्लेक्सिटी हो या फीमेल में कॉम्प्लेक्सिटी हो रिलेटेड विद योर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन उसके अलावा उसमें ग्रोथ होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। They are made up from the cell. They show the property of consciousness and digestion, respiration, transportation. All of these things are performed by them. वो इन सारी चीजों को परफॉर्म करता होगा। तो अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नॉन लिविंग है। डेफिनेटली वो लिविंग है, लेकिन रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट मैं आपको जरूर बता दूं, इज नॉट नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। सपोज दैट मैं किसी प्लांट्स या एनिमल्स की बात करूं, दे आर फर्टाइल, देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, दे आर कैपेबल टू क्रिएट द नेक्स्ट जनरेशन, लेकिन उसके बाद भी उसने मैरिज नहीं की, नो नेक्स्ट जनरेशन शुड बी देयर, शायद अगली पीढ़ी उसकी नहीं होगी, तो क्या आप उसे नॉन लिविंग कहोगे? नहीं, वो लिविंग ही कहलाएगा। इसका मतलब वो जिंदा है, वो सर्वाइव कर रहा है, और जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन क्या है मैंने बताया, इज नेसेसरी फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ रेस। हम चाहते हैं हमारी प्रजाति इस दुनिया में बनी रहे, हमारी पीढ़ी का निर्धारण हमेशा लगातार चलता रहे, वो कभी भी खत्म ना हो, क्योंकि अगर हमने अगली पीढ़ी का निर्धारण नहीं किया तो एक समय ऐसा आएगा हमारी प्रजाति दुनिया से विलुप्त हो जाएगी। सपोज यू हैव टेक द एग्जांपल ऑफ डायनासोर्स, नॉट ए प्रेजेंट टाइम इट सिंगल डायनासोर इज नॉट देयर, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि डायनासोर आज नहीं है तो उन्होंने रिप्रोडक्शन करना नहीं किया होगा, क्योंकि कुछ ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशंस या नेचर कैलेमिटीज आई होंगी जिनकी वजह से दे बिकम एक्सटिंक्ट फ्रॉम द नेचर एंड नॉट एट अ प्रेजेंट टाइम ए सिंगल डायनासोर इज नॉट प्रेजेंट हियर। एक सिंगल डायनासोर नहीं मिलता है, इवन दे आर द गाइंट रेप्टाइल्स ऑफ द जुरासिक पीरियड ऑफ द मेसोजोइक इरा। वो बहुत बड़े रेप्टाइल्स थे, सबसे ज्यादा डोमिनेंट मेंबर थे। जैसे आज के समय में इंसान को कहा गया इस पृथ्वी का डोमिनेंट मेंबर, उससे ज्यादा खतरनाक प्राणी कोई नहीं है। It means reproduction is the one of the criteria to differentiate between the non-living and living one, क्योंकि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स उसमें क्षमता ही नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन करके अगली पीढ़ी का निर्धारण कर दे। नहीं, आज टेबल एक है तो कल रूम में दो होती, फैन मेरे रूम में अगर दो लगे तो परसों चार होते, बट ये संभव नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्शन केवल और केवल लिविंग वन ही कर पाते हैं। It means reproduction is the process of the creation of next generation. Either they adopt the method of asexual reproduction or a sexual reproduction. But this is the criteria for the creation of next generation, the one of the parameters of the living organism. It means I have discussed in front of you two types of parameters to differentiate between the living and non-living. तीसरा पैरामीटर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके सामने, मेटाबॉलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ध्यान से आपको समझना है आखिरकार मेटाबॉलिज्म है क्या। मेटाबॉलिज्म हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, माइक्रोब्स मोनेरा किंगडम्स के हों, चाहे फंजाई किंगडम्स के मेंबर हों, चाहे वो प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्राइपेनेशोना या लसमेनिया ही क्यों ना हो, प्लांट किंगडम्स के एल्गी, ब्रायोफाइट, स्टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म ही क्यों ना हो, या एनिमल किंगडम के लॉट ऑफ डाइवर्सिटी आर देयर फ्रॉम पोरीफेरा टू टिलकॉर्डेटा, दे ऑल शो मेटाबॉलिज्म। मेरे कहने का मतलब है कि दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा।
मेटाबॉलिज्म है क्या? लिविंग बॉडी के अंदर चलने वाली रिएक्शंस विच इज नेसेसरी फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ देयर लाइफ, उनके साथ जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शायद बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर के अंदर दो तरह के रिएक्शन चलती हैं, एक होती है डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस और दूसरी होती है कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस। आखिरकार ये है क्या डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस? नाम से लग रहा है डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। व्हाट इज डिस्ट्रक्शन? किसी चीज को तोड़ना, विध्वंस करना। एंड व्हाट इज कंस्ट्रक्शन? मींस प्रोडक्शन, किसी चीज का निर्माण करना। सो आई हैव मेंशन टू टाइप्स ऑफ metabolism. Number 1 कैटाबॉलिज्म एंड नंबर 2 एनाबॉलिज्म। जो कैटाबॉलिज्म है इसका नाम मैंने दिया था डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस। सपोज दैट आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड यू पीपल नो वेरी वेल रेस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन होता क्या है? अगर मैं आपसे ही पूछूं तो आप कह दोगे सर we take oxygen and liberate the carbon dioxide, this is known as respiration। मैंने कहा बेटा 11th स्टैंडर्ड में आने के बाद भी यही बात आप बताओगे जो छोटे क्लास में आप बताते थे? एक तरफ तो आप कह रहे हो ऑक्सीजन लेना और CO2 को निकालना रेस्पिरेशन कहलाता है, और दूसरी तरफ आप कहते हो रेस्पिरेशन सर दो तरह का है, एरोबिक रेस्पिरेशन दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा कहते हो सर एनारोबिक रेस्पिरेशन जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। अब मैं आपसे पूछता हूं बताओ जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं वेदर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या ये रेस्पिरेशन नहीं कहलाएगा? आपको ये बात जो बताई गई है आपके प्रीवियस क्लासेस में वो अभी पूरी तरह से आपको नहीं बताई गई है। बट नाउ टुडे इन फ्रंट ऑफ यू आई हैव डिफरेंशिएट व्हाट इज रेस्पिरेशन इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिज्म, क्योंकि कैटाबॉलिज्म का मैंने नाम दिया डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। आखिरकार है क्या रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन की प्रोसेस में आप अपने शरीर के अंदर मोनोसैकेराइड शुगर एग्जांपल ग्लूकोज उसका डिस्ट्रक्शन करते हो, उसको ब्रेक डाउन करते हो, टर्न आउट करते हो, तोड़ देते हो, और उसकी तोड़ने की ये प्रोसेस अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है तो आप कह देते हो एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ग्लूकोज के डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है तो आप उसको कह देते हो एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन ध्यान रखिएगा इन दोनों प्रोसेस में काम एक ही हो रहा है, द कंबशन ऑफ ग्लूकोज, लिबरेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि वी नीड एनर्जी टू डू एक्टिविटी। आप फिजिक्स में ही पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ही हम एनर्जी कहते हैं। सो फ्रॉम वेयर वी गॉट द एनर्जी? हमें एनर्जी मिलती क्या है? क्या हम सन के सामने अगर खड़े हो जाए मुंह खोल के तो वी गॉट द एनर्जी? नॉट अ पॉसिबल, ये संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वी डोंट हैव अ क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल इज द ओनली मॉलिक्यूल प्रेजेंट द लीस्ट ऑफ प्लांट्स कैपेबल टू ट्रैप द सोलर एनर्जी, वो भी नॉट इंटायर सोलर एनर्जी, उसकी भी एक लिमिट्स है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ को वो ट्रैप करते हैं एंड परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ मेटाबॉलिज्म, जिसे आप कहते हो एनाबॉलिज्म, जिसे मैं आगे डिस्कस करूंगा, जिसे आप कहते हो कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस। तो मैं यहां पर आपको बता रहा था क्या? व्हाट इज रेस्पिरेशन? सो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आइदर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी व्हिच इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। जैसे सपोज दैट यहां पर मैंने जो रिएक्शन लिखी है कैटाबॉलिज्म की, जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा होगा, स्पेशली वो जो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। क्योंकि आप कह दोगे सर एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन होता ही नहीं है, क्योंकि मोनेरा किंगडम के बहुत सारे मेंबर्स एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं या फंजाई किंगडम के मेंबर। तो मैंने यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए भी एग्जांपल लिया है, एरोबिक का भी मैं मेंशन कर सकता हूं। यहां पर मैंने ये लिखा है C6H12O6 मोनोसैकेराइड शुगर ग्लूकोज। आप क्या करते हो? खाना खाते हैं। व्हाट यू हैव टू टेकन इन द योर डाइट? आप क्या लेते हो खाना में? आप कार्बोहाइड्रेट के रूप में चपाती या राइस खाते हो, जिसे हम कहते हैं एनर्जी ईटिंग फूड्स, और साथ में आप में घी तेल भी खाते हो। द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ फैट और लिपिड इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रोटीन लेते हो, विटामिन्स मिनरल्स भी आप लेते हो, सबका अलग अलग काम है।
एनर्जी रीडिंग फूड्स में कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड्स आते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड्स में प्रोटीन आता है। और मैं बात करता हूं विटामिन और मिनरल्स की, दे आर नोन एज डिसीज रेजिस्टेंस फूड। शायद ये हमें बीमारी से बचा के रखते हैं, इसीलिए तो अपने भोजन में इन सबको शामिल कर रखा है, क्योंकि हमें अपने शरीर का निर्माण भी करना है, हीलिंग भी करना है, वॉन्ड्स की मरम्मत भी करना है। सो वी हैव टू टेक इन द पल्सेस। हम दाल खाते हैं, एग, मिल्क द सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। हम सैलेड खाते हैं, फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं, दे आर द सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, द डिसीज रेजिस्टेंस फूड। मैं कहता हूं आपको बीमारियां नहीं होंगी इफ यू कंटिन्यूअसली कंज्यूमिंग द ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलेड एंड द फ्रूट्स। सो इट मीन्स ग्लूकोज जो आपके शरीर में है, क्या आप डायरेक्ट उसको ले रहे हो इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी? हमारा आंसर होगा नहीं। ईश्वर ने हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी मशीनरी सेटअप कर रखी है और उस मशीनरी में सारे ऑर्गन्स अपने अपने काम में महारत हासिल किए हैं। सपोज दैट इफ आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ आई का काम क्या होता है? विजन, चीजों को देखना। अगर आई से दिखना बंद हो जाए तो क्या आप कान से देखेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि कान का काम तो केवल हियरिंग करना है, नॉट टू सी द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ यू। वैसे ही आई हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, आई हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आई हैव स्केलेटल सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और सबका काम अलग अलग। जैसे मैंने यहां पर ग्लूकोज का एग्जांपल लिया है और ग्लूकोज का ही कंबशन कराया है मैंने यहां पर किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। आप डायरेक्ट ग्लूकोज को कंज्यूम कर सकते हो। क्रिकेट मैच बहुत देखते होंगे आप लोग। क्या होता है? प्लेयर्स खेल रहे होते हैं और शायद खेलते खेलते उनकी इतनी एनर्जी लॉस हो जाती है तो बीच में थोड़ा सा ब्रेक होता है। क्या कभी देखा है ब्रेक हुआ हो और उनके साथ लगे हुए जो उनके सहयोगी साथी हो और उनको वो पिज्जा, बर्गर या सैंडविच खिला रहे हो? नहीं। क्या देते हैं वो? फ्रूट जूस। ग्लूकॉन डी द बेस्ट सोर्स ऑफ मोनोसैकेराइड। क्यों? क्योंकि उन्हें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, तुरंत क्विक एनर्जी चाहिए, क्योंकि उन्हें अगला राउंड अपना कंटिन्यू करना है। अदरवाइज अगर वो पिज्जा, बर्गर, पाव भाजी खाएंगे सो दे नीड सर्टेन टाइम फॉर द डाइजेशन, और तब तक मैच ओवर हो जाएगा, उनको एनर्जी मिल नहीं पाएगी, तुरंत एनर्जी चाहिए उनको। इसलिए वो ग्लूकॉन डी या फ्रूट जूस पी रहे हैं, सोर्स ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि वो तुरंत क्या कंज्यूम कर रहे होंगे थ्रू द नॉस्ट्रिल्स? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करेगा उस ग्लूकोज से? रिएक्ट करेगा, ब्रेक डाउन the CO2, water vapor, and leave the 686 kilocalorie energy from one glucose molecule. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से इतनी एनर्जी मिल गई, which is near about equivalent to the 36 molecule of ATP, जिसे आप कहते हो एनर्जी करेंसी, adenosine triphosphate. So it means उन्हें तुरंत एनर्जी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने ग्लूकोज पिया है। आप सोचो, आप भी दिन भर ग्लूकोज पीते रहो। क्यों हम चावल इतनी देर तक खाते हैं, चबा चबा के रोटी, पूड़ी या पराठा खाते हैं, पिज्जा, पाव भाजी या बर्गर खाते हैं? क्योंकि दे आर द पॉलीसैकेराइड्स, दे नीड सर्टेन टाइम फॉर द डाइजेशन, बिकॉज वो पहले पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड में कन्वर्ट होंगे, फिर डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होंगे, तब आपको जाके कहीं इतनी एनर्जी मिल पाएगी। क्योंकि शरीर में हमारा ये सिस्टम वेल डेवलप प्रेजेंट है। इफ आई हैव टेकन, चलिए मैं कैटाबॉलिज्म की बात कर रहा हूं, मैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करता हूं, और मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन से नहीं बना है, एसोसिएशन ऑफ मैनी ऑर्गन्स टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। उद्देश्य हर किसी का एक है। डाइजेस्टिव सिस्टम रिप्रेजेंट हर ऑर्गन का एक ही काम होगा, हाउ वी कैन डाइजेस्ट दिस कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड। जो भी हमने लिया है, पॉलीसैकेराइड मींस मैं कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूं, प्रोटीन लिया तो प्रोटीन डाइजेशन की बात करेंगे, विटामिन मिनरल लिया तो उनकी बात करेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स अगर फूड्स में है तो उनकी बात करेंगे, क्योंकि डाइजेशन आप हर किसी का करोगे। तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होगा? सबसे पहले तो आपके पास एक सर्टेन ओपनिंग होगी, थ्रू द माउथ यू हैव टू टेक द फूड, अब माउथ से आपका डाइजेशन लीजिए शुरू। यू हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ, साइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, नमोलर। व्हाट द ड्यूटीज? आप यू नो वेरी वेल, आपको छोटे क्लास में बात बताई जाती है। चीविंग, कटिंग, बाइटिंग, मास्टिकेशन, ग्राइंडिंग आर द पार्ट ऑफ द ड्यूटी ऑफ द टीथ।
as well as we have salivary glands in our mouth. अलग अलग तरह के हैं salivary glands, कुछ ऊपर के हैं, नीचे के चीक्स में नीचे वाले लोअर जा में हैं, चीक्स में होते हैं, और वो salivary glands क्या करते हैं? To release the saliva continuously. किस लिए? To make the food lubricate. As have digestive enzymes like the salivary amylase, जिसे आप क्या कहते हो? टाइलिन, जिसका काम क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ पॉलीसैकेराइड इनटू द डाइसैकेराइड होगा। इवन मैं आपको बता दूं, आपके सलाइवा में क्या होता है? एक लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम निकलता है जो क्या करता है? माइक्रोब्स को किल कर देता है। आपने देखा होगा एक डॉग को अगर उसके घाव हो जाता है तो अपने घाव को सलाइवा से क्या करता है? उसको क्लीन करता है। क्यों? क्योंकि उसके सलाइवा में लाइसोजाइम नाम का एंजाइम माइक्रोब को किल कर देगा। क्योंकि वो उस बेचारे के पास ऐसा तो है नहीं सिस्टम कि वो हॉस्पिटल में चला जाए और कोई बैठा हो उसकी कोई हीलिंग कर दे वॉन्ड्स के विद द हेल्प ऑफ ऑइंटमेंट एंड द बैंडेज। दिस वाज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब हमने जो खाना खाया, हमारे खाने का डाइजेशन तो माउथ से शुरू हो गया और उसके बाद फिर क्या होगा? हमारा एलिमेंट्री कैनाल, जहां पर हमारा फैरिंग्स जो नेक रीजन में होगा, है ना, और नेक रीजन में फैरिंग्स कॉमन पाथवे है फॉर द ऑक्सीजन एज वेल एज द फूड। ईसोफेगस होगा, फिर पेट में आएगा भोजन, पेट में हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है जो सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस को, जो फूड का डाइजेशन करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा जहां पर फाइनली डाइजेशन होता है फूड का। फिर थ्रू द सर्टेन ओपनिंग एनस के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद हम उसको लिबरेट भी कर दें, जिसे आप इगेशन या डेफिकेशन कहते हो। इतनी सारी मशीनरी हमारे पास थी, किस लिए? केवल डाइजेशन ऑफ द फूड। तब जाकर हमको सिंपल फॉर्म में फूड मिलता है और हम उसको यूटिलाइज कर पाते हैं। तो इट मीन्स जो यहां पर मैंने कैटाबॉलिज्म की रिएक्शन जो लिखी है अरेबिक रेस्पिरेशन की, तो कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्शन हो रहा है इस ग्लूकोज का। किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। और मैंने भी बताया 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस द 686 मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी, एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ दिस एनर्जी हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन वी नीड? तुम्हारा आंसर होगा 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2। मैं आपको बता दूं, नीट एग्जामिनेशन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है RQ करके, जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। और व्हाट इज RQ? और RQ जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 गिवन आउट upon volume of oxygen taken in. Just suppose that here you liberate the 6 molecule of CO2. I will take the 6 molecule of O2 also. तो आप वैल्यू लिख सकते हो, आपने कितने मॉलिक्यूल CO2 के निकाले, कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के आपने लिए, कट किए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RQ? हमारा आंसर होगा फॉर द ग्लूकोज। ग्लूकोज को अगर आप तोड़ रहे हो अरेबिक रेस्पिरेशन में, तो RQ वैल्यू कितनी आ रही है? 1। इट मीन्स RQ वैल्यू सबकी क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है। प्रोटीन की अलग होगी, फैट्स की अलग होगी, लेकिन RQ वैल्यू को या तुम 1 कहते हैं, या तो कहते हैं लेस देन 1, या तो मोर देन 1। इट मीन्स कैटाबॉलिज्म इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म वेयर डिस्ट्रक्शन occurs and formation of the simple molecule। तो मैं अगर इसके एग्जाम डेफिनेशन सिंपली बताऊं, आपसे अगर पूछे कोई व्हाट इज द कैटाबॉलिज्म या व्हाट इज द कैटाबॉलिक रिएक्शन, तो आपको सिंपली बता देना है कि कैटाबॉलिज्म क्या है। क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्जर बायोमॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर वन। बड़े बायोमॉलिक्यूल का टूटना छोटे छोटे बायोमॉलिक्यूल में, दिस इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। जरूरी नहीं कि कैटाबॉलिज्म के आपको अगर डेफिनेशन पूछे तो आप अरेबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल दो। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस आपके शरीर में चलती है जहां पर डिस्ट्रक्शन ही चल रहा होगा, लेकिन एक चीज ध्यान देना है, डिस्ट्रक्शन या कैटाबॉलिज्म में हमेशा बड़े बायोमॉलिक्यूल से छोटे छोटे बायोमॉलिक्यूल ही बन जाते हैं। इज इट क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू? मैंने पहला टाइप बता दिया आपको कैटाबॉलिज्म का, जो मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है, और हमारा जो दूसरा टाइप उसका क्या नाम है? एनाबॉलिज्म, जिसे हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये एनाबॉलिज्म का ही एग्जांपल है। फोटोसिंथेसिस नाम से ही लग रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो? लाइट। एंड व्हाट द मीनिंग ऑफ सिंथेसिस? प्रोडक्शन। किसका प्रोडक्शन? यू नो वेरी वेल, प्लांट्स आर द ओनली मेंबर्स इन द अर्थ in the presence of light they are capable to produce the food। पौधे इस दुनिया में एक ऐसे मेंबर हैं जो क्या करते हैं? लाइट की प्रेजेंट में फूड का प्रोडक्शन कर देते हैं, बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल।
they have capacity to trap the solar energy and produce the molecule of glucose. अच्छा, मैंने ऊपर जो कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल अरेबिक रेस्पिरेशन का लिया था और एनाबॉलिक का एग्जांपल जो मैंने फोटोसिंथेसिस लिया है, इज एनी डिफरेंस देयर? कोई अंतर है? अंतर एक चीज का दिख रहा होगा, क्या? जो चीज मैंने यहां लिखी है इस साइड फोटोसिंथेसिस में, वो इधर लिखी है। जो चीज मैंने अरेबिक रेस्पिरेशन में यहां पर लिखी है उसको मैंने यहां लिखा है। मींस बोथ आर द जस्ट अपोजिट। अपोजिट तो है, यहां कहा डिस्ट्रक्शन है तो यहां पर क्या है? प्रोडक्शन है। तो चलिए आपको देखना है एनाबॉलिज्म में क्या है। जैसे मैंने कैटाबॉलिज्म में बताया था आपको कि डिस्ट्रक्शन ऑफ या ब्रेकिंग ऑफ लार्जर बायोमॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर वन, दिस इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। वैसे मैं अगर एनाबॉलिज्म की बात करूंगा तो क्या कहूंगा? कंस्ट्रक्शन या फॉर्मेशन ऑफ लार्जर बायोमॉलिक्यूल with the association of smaller one, this is known as कैटाबॉलिज्म। इसका मतलब एनाबॉलिज्म। इसका मतलब एनाबॉलिज्म की प्रोसेस में क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा था लार्जर बायोमॉलिक्यूल का, जबकि कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा था? लार्जर बायोमॉलिक्यूल टूट करके छोटे छोटे बायोमॉलिक्यूल में। आप क्या पढ़ते हो फोटोसिंथेसिस में? ये क्लास ये बात आपको 10th स्टैंडर्ड में भी बताई गई है, या उसके पहले ही क्लासेस में आपने पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में आप कहते हो प्लांट्स कैन ट्रैप द सोलर एनर्जी, they have the different types of chlorophyll molecule, क्योंकि this is the only molecule who is capable to trap the solar energy from the sun of the certain wavelengths। और क्या करते हैं? take the molecule of CO2 from the atmosphere, avail the water from the soil and produce the molecule of glucose and liberate the oxygen which goes into the atmosphere। देखिए इस प्रोसेस में क्या हो रहा है। छोटे छोटे बायोमॉलिक्यूल हैं और ये लार्जर बायोमॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर रहा है। बोथ ऑफ देम एंटागोनिस्टिक। यहां पर जो सबस्ट्रेट मैंने इस साइड लिखे हैं, यहां पर इस साइड है। जो सबस्ट्रेट यहां पर यहां लिखे हैं वो इस साइड है। दोनों अपोजिट है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, और दोनों लिविंग से होते। मैं आपको बता दूं, आपको अगर मैंने एरोबिक रेस्पिरेशन यहां पर लिखा तो इसका मतलब ये नहीं कि एरोबिक रेस्पिरेशन केवल इंसान ही करता है। पौधे एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर रहे होंगे फोटोसिंथेसिस। हो सकता है पौधों में, क्योंकि पौधों के बारे में एक कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में सेट होता है, क्या कहते हैं? प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, डेफिनेटली दे गिव अस ऑक्सीजन, बट इन विच प्रोसेस? तुम्हारा आंसर होता है फोटोसिंथेसिस। लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हो कि वो लिविंग है, वो ऑक्सीजन को लेता भी है, और ऑक्सीजन नहीं लेगा, रेस्पिरेशन नहीं करेगा, सो हाउ दे कैन कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस? क्योंकि दे नीड ऑक्सीजन ऑल्सो। हाँ, ये जरूर कह सकते हो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बाई प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस होने वाला जो ऑक्सीजन है, इसका कंटेंट इतना ज्यादा होता है जिसको वो खुद भी यूज करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, एंड द लिविंग बॉडीज आल्सो यूटिलाइज दिस ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल। दुनिया के सारे लिविंग भी इसको यूज करते हैं। इसका मतलब अब आज से मत ही कहिएगा कि पौधे ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। दे नीड ऑक्सीजन। हो सकता है, मैं आपको बता दूं, और 10th में शायद आपको टीचर ने डिस्कस किया भी होगा कि पौधे ऑक्सीजन दिन रात 24 घंटे लेंगे जब तक वो जिंदा हैं, इन द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन फॉर देयर सर्वाइवल। लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए उन्हें ऑक्सीजन कब लिबरेट करना है? इन द डे टाइम। आपने सुना होगा बड़े बुजुर्गों से, क्या कहते हैं? भैया रात के समय वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए। वाई दे आर सेइंग, दे हैव द सर्टेन लॉजिक बिहाइंड टू दिस वन। क्योंकि पौधे रात में ऑक्सीजन तो देते ही नहीं है। दे टेक दे लिबरेट द ऑक्सीजन ओनली इन द डे टाइम। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा जब प्लांट फिजियोलॉजी का फोटोसिंथेसिस का लेसन, तो मैं पूरी इंटायर लाइट और डार्क रिएक्शन को डिस्कस करूंगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में सेटअप है कि फोटोसिंथेसिस दिन में होता है। नहीं भाई, भोजन निर्माण का जो प्रोसेस है वो तो रात में ही होगा। दिन में तो क्या निकालते हैं वो? ऑक्सीजन। मींस एक तीर से दो निशाने। फोटोसिंथेसिस अभी मैंने बताया विच द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म, सिंथेसिस ऑफ फूड। इसका उद्देश्य केवल भोजन निर्माण करना है। इन भोजन निर्माण की जो प्रोसेस है, ग्लूकोज प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है विद एसोसिएशन ऑफ बोथ स्मॉलर बायोमॉलिक्यूल, ये तो रात में होता है, जिसे आप डार्क रिएक्शन कहते हो। जबकि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन पौधे दिन में कहते हैं, जिसे हम लाइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इट मींस बोथ ऑफ देम आर द
types of metabolic reaction is the one of the characteristic feature of the living organism that you find only and only in the living one. नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगी. Which are of the two types already I have discussed in front of you. कैटाबॉलिज्म जिसे आप डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन कहते हो, जहां पर लार्जर बायोमोलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर वन. दूसरा मैंने बताया एनाबॉलिज्म, जहां पर स्मॉलेस्ट बायोमोलिक्यूल्स एसोसिएट करते हैं टू सिंथेसाइज द लार्जर वन. इज इट क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू? सो आई हैव टेकन द बोथ एग्जांपल, दोनों एग्जांपल मैंने आपको बताया, एरोबिक रिएक्शन का कैटाबॉलिज्म में और फोटोसिंथेसिस द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म. इट मींस आई हैव डिस्कस्ड इन फ्रंट ऑफ यू थ्री कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, जो चीजें मैंने बताई हैं पूरा यही सेम टू सेम उन्होंने दे रखा है कि व्हाट इज ग्रोथ, हाउ दिस वाज हैपन द केस ऑफ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. दूसरा मैंने बताया रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन. बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आगे डिस्कस करेंगे. वैसे 10th में आप लोगों ने पढ़ा ही है, अभी हाल ही पढ़ा है, लास्ट ईयर में आप लोगों ने. कई टाइप्स हैं उसके. और मेटाबॉलिज्म भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म. कुछ बच्चों ने हो सकता है अपने टीचर से 10th में डिटेल में सारी चीजें डिस्कस की होंगी, तो उन्हें सारी चीजें पता भी होंगी. बट आपका ये सारा जो इंटायर टॉपिक है वो फर्स्ट लेसन से लिविंग है, और मुझे इंट्रोड्यूस करवाना है इन सारी चीजों के बारे में, क्योंकि हियर आई एम डिस्कसिंग अबाउट द बायोलॉजी इन फ्रंट ऑफ यू. व्हाट इज बायोलॉजी? टू स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए what is living, how I have to differentiate between the livings and living. Only these are the parameters. केवल यही एक ऐसे पैरामीटर्स हैं कि शायद ये बात हमें बताते हैं कि लिविंग्स और नॉन लिविंग्स में अंतर क्या है. हमारा चौथा पॉइंट यहां पर लिखा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़ते हो लेसन 1. क्या पढ़ते हो? सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ. डेफिनेटली यूनिट ऑफ लाइफ. हमारी शरीर या हमारे जीवन की जो सबसे छोटी इकाई है, दैट इज नोन एज सेल. सेल के बारे में आपने ये भी पढ़ा है, इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द एंटोनी वॉन लीवेनहॉक. कुछ लोग कहते हैं रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने तो केवल क्या किया था, कॉर्क सेल में इसको देखा, और क्या किया रॉबर्ट हुक ने? बताया कि कैसे सेल दिखाई देती है, जिन्होंने 1600 में माइक्रोस्कोप में देख करके लगभग बताया था. लेकिन एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, इन्होंने क्या किया? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, इन्होंने एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों को लाइफ फॉर्म में ऑब्जर्व किया, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में, जो उस समय बहुत ही सिंपल था. इट मींस सेल, जिसका मीनिंग क्या होता है? ए स्मॉल कंपार्टमेंट. व्हाट द मीनिंग ऑफ स्मॉल कंपार्टमेंट? एक वो छोटा सा हिस्सा जो हर लिविंग्स में प्रेजेंट है. मैं बता दूं, लिविंग्स यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, दे आर फ्रॉम द प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम. दे आर मेड अप फ्रॉम द यूनिसेलुलर सेल, सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल, आइदर फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल. लेकिन कोशिका तो सब में होगी. क्यों? क्योंकि सेल लिविंग्स में ही होती है, नॉन लिविंग्स में ही होती है. और सेल का निर्माण कई चीजों से होता है. 9th में पढ़ा है, और इस साल 11 में फिर डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेल चैप्टर है हमारा, जहां पर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा. व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, व्हाट इज साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, पैरोक्सिसोम, लाइसोसोम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सबके बारे में मैं डिस्कस करूंगा. तो मैं जो चौथा डिफरेंस था लिविंग्स नॉन लिविंग्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, तो मैं आपको बता दूं, दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स दे आर मेड अप फ्रॉम द सेल, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल के बने हों या यूकैरियोटिक सेल के, लेकिन कोशिका के जरूर बने होंगे. इफ द सेल इज नॉट प्रेजेंट इन वन, इट मींस दे आर कंसीडर्ड एज ए नॉन लिविंग वन. जैसे सपोज दैट आपके सामने मैं बता दूं, दिस इज द बोर्ड. Perhaps this one is made up from the wood, and certain time this is a part of tree. उस समय लिविंग था, they have a cell, but क्या अब इसमें जो पाई जाने वाली जो वुड टेक्सचर आपको ये दिख रहा है, ये लिविंग्स है? मेरा आंसर होगा नहीं. क्यों? कि नॉट अ प्रेजेंट टाइम दे आर नॉन लिविंग्स. क्यों? क्योंकि कोशिका का जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर था वो अब हमें इसमें देखने को नहीं मिलेगा. सारी चीज़ें डेथ हो चुकी हैं, चाहे साइटोप्लाज्म हो, मेम्ब्रेन की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की, कोई भी चीज़ हमें देखने को नहीं मिलेगी. तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, दे आर मेड अप फ्रॉम द सेल, इज द वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द लिविंग वन, जो नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलेगा.
पांचवा बहुत बढ़िया दे रखा है मैंने यहाँ पर, कॉन्शियसनेस। आपको मैं अगर खड़ा करूं और इस क्लैप देने के लिए हाथ उठाऊं तो आप अपना गाल तुरंत पीछे हटा दो। इट मीन्स यू गिव द रिएक्शन। मैंने आई हैव गिवन द स्टिमुलस इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने एक हाथ क्या दिखाया, एक छड़ी क्या उठाई और आप पीछे भागते हो। इट मीन्स यू आर द लिविंग वंस एंड गिव द रिएक्शन बिकॉज ऑफ द स्टिमुलस प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू। क्या ऐसा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट करते हैं? ये बोल है, अगर मेरे हाथ में पेन की जगह हैमर होता, तोड़ा, और मैं ऐसे खट खट कर रहा होता तेज तेज, तो क्या ये रिएक्शन करता? नहीं। क्यों? क्योंकि दिस इज द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। जिसमें हथौड़ा क्या चाहे इसको बर्न कर दो, जो भी करो, कुछ भी, ये कुछ भी रिएक्शन नहीं करने वाला। लेकिन लिविंग वंस ये रिएक्शन करते हैं। छोटा सा एग्जांपल मैं प्लांट्स के बता दूं। छुई का पौधा सब लोग जानते हैं ना, जिसे हम टच मी नॉट या मिमोसा पुडिका कहते हैं। आर वी गिविंग द टच स्टिमुलस? द लीव्स बेंड डाउन। व्हाई? क्योंकि उन्होंने टच स्टिमुलस को रिसीव किया एंड गिव द रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली। वो सर्टेन रिस्पॉन्स देंगे, तुरंत लीफ बेंड डाउन होती है, लेकिन परमानेंटली नहीं। आफ्टर सर्टेन टाइम दे बिकम नॉर्मल। पढ़ा भी होगा आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में, सीस्मोनास्टिक मूवमेंट्स परफॉर्म बाय देम बिकॉज ऑफ टच स्टिमुलस। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म दे हैव कॉन्शियसनेस। हम सब अपने लिए कॉन्शियस हैं, हमें चीजें पता होती हैं हमारे लिए क्या अच्छी हैं क्या बुरी हैं। कोई अगर हम ऐसी अचानक घटना देख लें सो वी शॉक, और हमारा हृदय पल्स बीटिंग इंक्रीज कर जाएंगी। और जब हम प्लीजर खुश होते हैं तो उस समय आपकी भावनाएं अलग होती हैं। इट मीन्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म शो दिस यूनिक फिनोमेना बट द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट शो दिस कॉन्सेप्ट। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं होता है, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। इट मीन्स मैंने लिविंग वर्ड लेसन, जो फर्स्ट लेसन है आपका, मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है आपको, और यहां पर ये डिस्कस किया है हाउ पीपल डिफरेंशिएट अमंग द लिविंग्स एंड नॉन लिविंग वर्ड्स। और नीचे मैंने कुछ यहां पर एग्जाम्पल दिए हैं जो केवल नॉन लिविंग्स में, सॉरी लिविंग्स में होते हैं, नॉन लिविंग्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। डाइजेशन मैंने भी एग्जांपल आपको दिया था, इज द एग्जांपल ऑफ कैटाबॉलिज्म, जहां पर आप क्या कर रहे हो, केवल डिस्ट्रक्शन ही कर रहे हो। जो भी हम फूड खाते हैं स्टेप बाय स्टेप फूड डाइजेस्ट होता है, पहले कॉम्प्लेक्स से सिंपल में, फिर उससे सिंपल, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में। रेस्पिरेशन की प्रोसेस अभी मैंने बताई, दुनिया के सारे लिविंग वर्ड्स करते हैं, चाहे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करें चाहे एब्सेंस में करें। हाँ, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं सो प्रोड्यूस द ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है इन द केस ऑफ फंजाई एंड द सर्टेन माइक्रोब्स, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वाज वेरी फ्यू, नियर अबाउट, किसी बुक्स में 52 कैलोरी दे रखा है तो कहीं कहीं पर 56 कैलोरी दे रखा है, which is near about equal to 2 molecules of ATP, the one of the characteristic features of the living one। तीसरा मैंने यहां पर लिखा है एक्सक्रीशन, को पढ़ा आपने 10th स्टैंडर्ड में। व्हाट इज एक्सक्रीशन? तो कहते हैं रिमूवल ऑफ नॉन टॉक्सिक nitrogenous waste from our body is known as excretion because the certain living organisms excrete the urea, some excrete ammonia and some other uric acid. But this is necessary because if these excretory substances was accumulated continuously inside the living organism may be caused to death of them, शायद उनकी मृत्यु हो जाएगी, मॉर्टेलिटी रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स एक्सक्रीशन इज ऑल्सो परफॉर्म बाय देम। सर्कुलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत जरूरी है। इफ दिस वाज नॉट अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म सो नो पॉसिबिलिटी फॉर द सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। सपोज दैट इफ आई हैव टेकन द फूड, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम ने उसको डाइजेस्ट भी कर लिया सिंपलेस्ट फॉर्म में, बट जो ग्लूकोज हमने बना लिया डाइजेस्ट को, हाउ मेक इट्स अवेलेबिलिटी टू एंटायर बॉडी। मैंने ऑक्सीजन ली थ्रू द नॉस्ट्रिल is a part of the entry of oxygen in the case of respiratory system, but how this oxygen make it available to entire cell of our body? उसके लिए हमारे शरीर में ईश्वर ने क्या दे रखा है? ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, और 2 सिस्टम है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड द सेकंड वन इज नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम। तो आप सोच रहे होगे सर वी हैव हार्ट, वी हैव lymphocyte tissue and with the help of lymphatic and blood vascular system perform the process of circulation. But how the plants carry out? पढ़ा तो है आप लोगों ने प्लांट्स के बारे में भी। They have the phloem, they have the xylem, they are the examples of
transporting tissue to carry the process of transportation of food, water, minerals and other essential and non-essential objects. ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको लिविंग्स में देखने को मिलेंगे, जैसे वी हैव नर्वस सिस्टम, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम का काम क्या है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इनके बारे में आपको बता दूं, कंट्रोल नियंत्रण एंड कोऑर्डिनेशन तालमेल, सामंजस्य। एक शहर में बीच में जब चौराहा आता है तो ट्रैफिक पुलिस वाला वहां खड़ा होता है, व्हाट द ड्यूटी ऑफ दैट वन? टू कंट्रोल द ट्रैफिक इन पार्टिकुलर एरिया। हमारे शरीर में भी ईश्वर ने हमारे अंदर के जैसा ट्रैफिक तो कहीं होगा ही नहीं। शहर में ट्रैफिक तो रात में हो सकता है कम हो जाए, लोग सो जाते हैं, लेकिन आप जब सोते हो तो आपके अंदर का ट्रैफिक नहीं कम होता। क्या आप रेस्पिरेशन बंद कर दोगे? क्या डाइजेशन बंद हो जाएगा? एक्सक्रीशन या ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा होगा? सब कुछ हो रहा होगा। इवन ए सिंगल मिनट, 1 मिनट के लिए भी हमारा शरीर रेस्ट नहीं कर रहा होता है। सपोज दैट अगर मैं आपसे कहूं यू स्टॉप टू टेक द ऑक्सीजन, क्या आप जिंदा रह पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहूंगा हार्ट से कह दो बेटा थक गए हो तुम, कितना ब्लड को पंप करोगे, तो क्या वो रुक जाएगा? रोका, आपकी डेथ हो जाएगी। इट मीन्स नर्वस सिस्टम का काम क्या है? ये जो सारे सिस्टम हमारे शरीर के अंदर ऑपरेट हो रहे हैं, कंट्रोल करना, सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेट करना। इतना ट्रैफिक होने के बावजूद भी एक मिशअप, एक भी प्रॉब्लम्स, एक भी इश्यूज नहीं आते। सारे सिस्टम हम, क्या मैं बोल रहा हूं आपके सामने, तो क्या दूसरे काम मेरे शरीर के अंदर नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। फिर छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। टेनिस प्लेयर खेलना होता ना टेनिस, सामने दोनों प्लेयर्स होंगे। अब देखिएगा सामने वाले टेनिस प्लेयर को, ही इज यूजिंग द हैंड्स टू ब्रिंग द रैकेट। वो हैंड्स को द्वारा रैकेट को लिए है टू हिट द बॉल, और साथ में क्या है? साथ ही साथ यूजिंग द आईज टू सी सामने वाला कैसे हिट कर रहा है बॉल को, ये भी वो देख रहा है। एंड यूजिंग द ब्रेन एट द सेम टाइम, हाउ आई कैन हिट अगेंस्ट द, मीन एट द सेम टाइम ही इज यूजिंग द हैंड, he is using the eye, आप बोला the brain. It means अब आप सोचिए एक साथ तीनों को यूज किया केवल बॉल को हिट करने के लिए सामने वाले प्लेयर के अगेंस्ट में। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमारा नर्वस सिस्टम होता है। इवन मैं अगर सेल की बात करूं तो सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसे हम बॉस ऑफ द सेल, डायरेक्टर ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि दैट न्यूक्लियस कंट्रोल एंटायर एक्टिविटीज इनसाइड द सेल। कोशिका के अंदर वो सारी गतिविधियों को कंट्रोल करने का काम करता है। ऐसे ही स्केलेटल सिस्टम है, ऐसे ही इंडोक्राइन सिस्टम है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि आप बायोलॉजी में इन सारी चीज़ों को ही डिस्कस करोगे। व्हाट वाज हैपन इन द केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म में चल रहा है, और इन सारी प्रोसेस को डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते जाएंगे। यूनिट वाइज आपका लेसन ही दे रखा है, आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, means external structure, how they are looking, leaves, roots, stem, flowers, their modifications. आप उनकी एनाटॉमी भी पढ़ोगे, from internally how they are looking. अगर stem का सेक्शन काटते हो longitudinal, sorry, transverse या longitudinal, so how the structures of the different tissues are there. आप पढ़ोगे ऐसे ही in the case of animal kingdom, their morphology, their anatomy, कॉकरोच का, फ्रॉग का, अर्थवॉर्म का। फिर डिस्कशन हमारा होगा प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का, यहां पर हमें डिस्कस करना है द फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स वाला द एनिमल्स, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, गटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इन सारी चीजों को पढ़ना है। आवाज द टाइप्स ऑफ लिविंग्स इन द पार्ट, क्योंकि ये सारे क्या है आपका द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सो परहैप्स स्टूडेंट्स आप टुडे इंट्रोड्यूसिंग अबाउट द लिविंग वर्ड्स, और डिस्कस भी किया है हाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट टू लिविंग्स एंड नॉन लिविंग। शायद मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट विद योर एनसीईआरटी,
concern your NCERT, if you have certain issues, so in the next video I will clarify your doubts in front of you and continue your lesson with the discussion of the next topic of the living words. Thank you, students.